मेरा फेस्टिवल है ना वो चर्च कोई नहीं आया। कांग्रेस आया फेस्टिवल। राजेश ओम प्रकाश को दिए राकेश रोशन को? हाँ दे दिए हैं। ओम प्रकाश को तो कर दीजिए। सर मोबाइल थोड़ा ठीक कीजिए। हाँ सर, मैं वो उसके लैंडस्केप मोड में जा रहा हूँ सर। कैसे हो ओम प्रकाश? सर मैं ठीक हूँ सर। गुड इवनिंग सर। और भी लोग हैं? यस सर। और भी लोग हैं तभी तो वेट कीजिए। अच्छा, और भी लोग हैं सर। चलिए स्टार्ट करें। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम। Sir, I am graduated from PS Chanakya, Mumbai in BSc Nautical Science in 2009, and I have done my 12th from Science College Patna and 10th from Netarhat School, Netarhat. I have worked in Merchant Navy for 5 years and left my job in 2015. And my interest is in diary writing, and मेरा strength है sir honesty, integrity, and sir working in team. And my weaknesses are just trusting anybody very easily and being very emotional at the times. Your optional is sociology. Sociology sir. आचार्य जी आप स्टार्ट करें। Sir, okay. So you were earlier a merchant navy, right? Yes sir. So what led you to switch over your job from merchant navy to your interest in administration? Sir, since childhood I wanted to join this civil service because it was my dream to serve the society and just contribute to society, because I have taken my educations since right from the schooling from government institute, and it was my duty and responsibility. Somewhere I was just thinking that I have to return to the society, and it was the best platform, government service and the civil servant. It's a good platform to serve the society, sir. And that's why I just left my job and just want to join this civil service. So to being an engineer, do you think you have an edge in administration, like you can bring some innovative changes in administration? Obviously, sir. Being actually, sir, my job profile was not towards the technology. It was the kind of administration and the navigation. But although I have trained for the technological part during my training periods. So it can help in the civil services, as somewhere if technological help can give is as a connecting to the society. Like day by day we are getting modern cutting edge technology. I can get familiar with them very easily, sir. Okay. How do you measure distance in water? Sir, in nautical miles, sir. Okay, so the 12 nautical miles from Indian territory. Yes, and sir. then we have another 200 nautical miles. Yes, sir. What is that area called? Sir, this is an exclusive economic zone, sir. Okay. So whose area this belongs to? Sir, this area belongs to the country, those who are having their sea coast to the 200 nautical mile, and after that it is the foreign water. Which water? Sir, foreign water like international water.
Okay, international water. Yes. So, do all country have equal rights in international water? Sir, as per the IMO, International Maritime Organizations, and the UN conventions, everybody, matlab, every country have their rights to use this water as a navigation. Uh, yes, sir. So they have uh, equal rights. Okay, what are the dispute in South China Sea? Sir, South China dispute is all about uh, many islands. Some of them are Spratly Island, Senkaku Island, and uh, I'm just not recalling all the names, sir. So these are all the disputed area. China wanted its right over there, and the Senkaku Island is a dispute between the China and the Japan, and the others like Spratly Island, and then this Okay, uh, okay. uh, Uh, can you tell who wrote Prisoner's Diary? Prisoner's Diary. So right now I cannot recall that, sir. Okay, can you name few good diary writers? Yes, sir. So the very famous diary is Anne Frank diary, sir, and the other diary is Marco Polo diary, sir. That is led to the Okay, discovery of mm, America. No, that has been followed by the Columbus. And sir, okay. Does diary writing help you in any way, or it is just a wastage yes, of time? no, sir. It's helped me a lot, sir, because it's give me chances to introspect, and it gives me to finding my faults, what I have done, and it gives me also to plan for the next day. Okay. Is it your diary is secret or you share things with others? Sir, obviously, sir, diary is like some kind of personal assets, but sometimes the things I am just writing there that can be the inspirational for the public purposes also, sir. Okay, very nice. See, the work in administration is not so swift. So if you have to get your work done, you need some mediators, some brokers. And since you trust others very easily, don't you think in administration people will use you, the brokers, the mediators, and everyone because you can easily get a good relation, you trust with them? Of course, sir, this is my weakness, and just I am just trying to improve on that. But sir, it also gives me chance to interact with the peoples. I can be comfortable with them. Those who are not coming, we are in a hierarchical position. Some peoples from the rural background, they don't want to connect with the officers, and my this weaknesses sometimes become the strength, sir. So. Uh, but I, but but in, interacting with people requires listening to them, interacting with them, making a interactive culture environment rather than trusting anyone. No, if I don't trust anyone, that doesn't mean that I'm not having a good relation with them. So this may affect your work negatively. What I want to point. yes, sir. Trusting, sir, obviously it will affect, sir, but not every time, sir. That's why I just Okay, okay. pointing it out as a weakness, sir, and I'm working on it. Okay. Okay, so I give you a situation. One very poor man, very poor in your area comes to you for some help, say food or, but his name is not in BPL list. So how would you help him as an Sir, administrator? uh, yes, sir. Sir, government services are based on the framework, sir. Like rules and regulations are listed, and circulars has been made for the work assigned. But sir, at some times, like you have given the situations, BPL family like below poverty line, they are like vulnerable and destitute kind of persons in the societies. So we have to think about out of the boxes also, sir. Sometimes if they are not getting their like work, their rights, then we have to come out from the uh, 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 a strict framework, sir.
So Oh, that I understand. My question is how you will help him. sir, I will help them to just coming out from work, and whatever the How? right for. Sir, if they are not having their ration cards, then I will just give them their rights to their making their ration cards, and maybe they are not giving, they are not getting their health uh, health insurance covered. Then I will connect with them the national insurance and the health insurance, all the kind of government schemes. I will connect with them, sir. Okay. Okay. What is your home district? Sir, I am from Jahanabad, sir. Jahanabad. Oh, that Naxal area, Jahanabad. Yes, sir. Previously it was in Naxal area, but things are getting improved, sir, with the good administration. And now Jahanabad has been divided in two parts. Now another district is named is formed with the Arwal, and most of the Naxalism was in Arwal district, sir. Okay. Okay. Sir, What is market socialism? Market socialism. Sir, I can guess on that, sir, because it's socialism is all about distribution of resources, and it talks about the public ownership. So, market socialism is maybe the mix of the capitalism and the socialism, where Really? both. Which country use market socialism? Sir, as of now, sir, I think the China, sir. Hmm? China, sir. Achha. What is knowledge society? Knowledge society, sir. Society, they work rationally, logically, and they have their strength to influence the peoples. Achha. What is the key elements to get social justice for any downtrodden people? Sir, social justice is defined in the terms of liberty, rights, and the freedom, sir. Sir, and this What can is you please the second key part of the elements? question? Please. What is the Key key elements. elements? The key elements are the equitable distribution of resources, sir, Hmm. should be done in the society. Hmm. And second thing, freedom should be provided, equality should be in the society, and the destitution, deprivation should be at the minimum level. It cannot be eliminated. And rich poor divide should be at minimum level. What effect urbanization made in society, especially in the rural area? Come again, sir? Urbanization affects society, Yes. Okay, especially sir, in I the understand. rural area. Okay, sir, I understand now, sir. Sir, urbanization in the rural areas can affect in the positive way, sir, and the negative way both, sir. In positive, first I will list out the positive things, sir. They will get the good infrastructures like health, educations, and the good connectivity, and the economic system will be improved. And when we are talking about the negative parts, sir, the natural exploitation of the resources gives the pollutions in the rural areas if we are going in unplanned urbanizations. And maybe the peoples, they're having the community life, they can shift it to the individualism, sir. So these are the negative parts if the urbanization goes into the village. What affect democratic institution in a caste system? Sir, democracy is very relevant in the caste-based society, sir, because caste is a hierarchical system. There many deprivation, inequality exists, sir. And democracy brings the positive political system in the society. If the caste comes together on the line of development,
they can bring the democracy as a polarization, caste polarization is a real phenomena in not only in Bihar but in India. Yes, sir. Democratic setup. How can you say that is positive environment created by political system? No, sir. Caste sometimes have both kind of effects, sir. If caste sometimes give the solidarity in the society, those castes have not have voice in the public sphere. Being solidified, they can bring their voices in the political level, sir. Like the Bahujan Samaj Party, these are the political parties comes together on the caste line, and now they are having voice on the public sphere in the political system, sir. So this is the benefit. जो इंडियन सोसाइटी अभी है उसमें सोशियोलॉजी का ट्रेंड कैसा जा रहा है, अगर इसको हम जो सोशल मीडिया है इसको ध्यान में रख के देखें तो? सर विच सोसाइटी सर? इंडियन सोसाइटी में सोशियोलॉजी का जो ट्रेंड है, मॉडर्न ट्रेंड है, यू कैन से फोर्थ फेज ऑफ ट्रेंड, तो उसमें सोशल मीडिया का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है। उसको देखते हुए आप कैसा ट्रेंड फील कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? सर अभी जो हमारे इंडिया में सोशल मीडिया का जो इंटरफेरेंस बढ़ गया है सर, वो पॉजिटिव इफेक्ट भी है सर और निगेटिव इफेक्ट भी है सर। बिकॉज सर पॉजिटिवली हम यदि डिस्कस करें तो सर क्या है कि अभी हमारे रूरल एरियाज तक इसकी कनेक्टिविटी बढ़ी है सर। लोग अब जो गांव और जो एक ग्लोबल लेवल के मुद्दे हैं सर, लोग एक साथ मिलकर के उस पर डिस्कशन कर रहे हैं सर। लोग अवेयर हो रहे हैं सर। कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम हो रहा है सर, वो जल्दी ही उनके जानकारी में आ रहा है सर। अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है सर। जैसे अभी रिसेंट में ले लें सर, कोरोना सर, कोरोना जो सोशल मीडिया के थ्रू हमने अवेयरनेस पहुंचाने की बहुत मतलब एक अच्छा मदद मिला सर। जल्दी से लोगों में अवेयरनेस गया सर सोशल मीडिया के थ्रू सर। बट उसके अलावा सर इसके निगेटिव भी इफेक्ट है सर। जैसे कि अभी आजकल हमारे यहाँ सर फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म चल रही है सर, जो कास्ट डिवाइड है सर, रिलीजन डिवाइड है सर। सो इसके मुद्दे भी हमारे बहुत जल्दी से सोशल मीडिया में फैलते हैं, जिसके कारण से ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है सर। अभी रिसेंटली सर हमारा बेंगलोर का मुद्दा है सर, जहाँ पे हमने देखा एक रॉयट्स हुआ सर सोशल मीडिया पे। हमने एक लाइक इस निंदा जो बोलते हैं सर वो की गई, और उसके आधार पे लोग एकजुट होकर के, मोबिलाइज होकर के, और रॉयट का एक फॉर्म आ गया था। तो इस तरह से निगेटिवली भी इफेक्ट डाल रहा है सर। तो सोसाइटी इज ऑल इंक्लूसिव सर, तो देख सकते हैं कि इसके दोनों पार्ट। अच्छा, अभी जो भी मॉब लिंचिंग या कुछ र्यूमर्स पर कुछ घटनाएं घट जा रही हैं, उसके लिए आपको लेजिस्लेशन चाहिए या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से काम चल सकता है? सर मॉब लिंचिंग ऑब्वियसली सर अभी हमारे यहाँ इंडिया में एक फैक्ट बन चुका है सर, क्योंकि जिस तरह से हम 2-3 सालों में देख रहे हैं सर, इसके जगह जगह पे इसके मतलब घटनाएं हुई हैं सर। तो इसके लिए सबसे पहले सर गवर्नमेंट एक इफेक्टिव मशीनरी है सर। गवर्नमेंट ही इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ला करके लोगों में एक फियर डाल सकते हैं कि इसके मतलब कंसिक्वेंसेस मतलब बुरे हो सकते हैं यदि कोई लोग इस तरह से इन्वॉल्व होगा सर। जैसे हमारे बिहार सरकार ने इसके लिए लाया था सर कि जो भी मॉब लिंचिंग में मतलब जिनका नाम आएगा उनको सरकारी सेवा में इस तरह से लेजिस्लेशन ये है। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसमें कैसा काम कर रहा है सर? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में सर ऑब्वियसली सर हमें मतलब जो लोकल लेवल पे लोगों से कनेक्ट करने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन चाहिए सर, क्योंकि वो सेंट्रल कमांड इसमें काम नहीं कर सकते। किसका फेलियर है? जो अभी तक फेल हुए हैं, आपको सूचना मिली, हम लोग को मीडिया से सूचना मिलती रहती है कि आए दिन ऐसी वारदात होती रहती है, इसमें किसका फेलियर है, लेजिस्लेशन का या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का? सर इसमें सर बहुत सारे गैप्स हैं सर। मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के भी फेलियर है सर और लेजिस्लेशन के भी फेलियर है सर। बिकॉज सर लोगों तक मतलब जिस तरह से हम देख रहे हैं सर गवर्नमेंट का पेनिट्रेशन, उनके रूल्स रेगुलेशंस मतलब अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं सर, और कास्ट लाइन पे और ये मतलब रिलीजियस लाइन पे आकर के क्राइम कर रहे हैं सर। अच्छा, if you have been posted as an SDM in some flooded area where communication
इज ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, तो आपको तो एक एक्सपीरियंस होगा जो मेरिन इंजीनियर के रूप में आपको मिला होगा कम्युनिकेशन का, उसका इस्तेमाल यहाँ कैसे करेंगे? सर एसडीएम का पोस्ट सर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भरी होती है सर। वहाँ पे सर एक साथ चीजें जैसे बाढ़ का एरिया सर, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ चलेंगे सर। तो एसडीएम एज ए मैनेजर भी वहाँ पे काम करता है सर, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ कम्युनिकेशंस, इवैक्यूएशंस, सारी चीजों को वहाँ पे लीड करना मतलब करने की जरूरत पड़ती है सर। तो कम्युनिकेशंस हमारे जो मतलब एक मेरा एक बेनिफिट रहेगा सर कि मैंने जो शिपिंग लाइन में काम किया सर, तो हमारा एक GMDSS वहाँ पे होता था सर, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सिस्टम। तो उसमें होता था सर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की बातें होती थी सर। तो जहाँ पे हो सकता है कि हमारा लैंडलाइन कनेक्शन और जिस तरह का मोबाइल टावर्स वगैरह नहीं पहुँच पा रहे हो, तो वहाँ पे हम सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का हेल्प लेकर के लोगों के मतलब जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है उनसे जुड़ सकते हैं सर, और जल्दी से उनको मदद पहुँचाई जा सकती है सर। पब्लिक इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है? सर पब्लिक के लिए सर अफोर्डेबल नहीं रहेगा सर, तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है सर। तो हम उनके साथ कनेक्ट करके उनकी समस्याओं को सर हम ला सकते हैं सर। और यदि गवर्नमेंट चाहे कि यदि उतनी एफिशिएंट होगी सर, तो हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं सर। अच्छा, बिहार में अगर बोला जाए जो पिछड़ापन है बिहार का, उसका दो रीजन प्रोमिनेंट, दो काउज बताने हैं, तो क्या बताइएगा आप? सर सबसे पहले सर स्किल डेवलपमेंट सर। हमारे यहाँ जो माइग्रेंट जो लेबरर हैं सर, उनको हम यदि उनका स्किल डेवलप करके यहाँ पे ही हम कुछ इस तरह का जॉब प्रोवाइड करें, तो हमारे यहाँ मतलब एक अच्छी तरह एक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी सर। यहाँ पे हमारे उद्योग और उनका लाइवलीहुड बनेगा सर। और दूसरी चीजें सर, यहाँ पे जो करप्शन है सर, उस करप्शन को मतलब हम एड्रेस करना चाहेंगे सर। ये आपसे भी और भी बातचीत में पता चलता है कि सभी लोग बोलते हैं डेवलपमेंट का एक ही रास्ता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये क्या सही है? सर अभी जिस तरह से जो हमारे जो एक पाथ देखा गया सर डेवलपमेंट का, जैसे कि हम सर इतिहास में जाएं तो औद्योगिक क्रांति के बाद सर जिस तरह से वर्ल्ड में चेंजेज आए हैं सर, उसका बेस इंडस्ट्री ही रहा है सर। तो उसके आधार पर बता सकते हैं न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ये सब जो कंट्रीज हैं जिनका पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड में टॉप में रहता है, वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, वो लोग एग्रीकल्चर बेस्ड ही हैं। तो जिसकी कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी में ही डेवलप कर सके। बिहार को गुजरात मॉडल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट बिहार को एज ए बिहार हम डेवलप कर सकते। यस सर। एग्रीकल्चर सर इंडस्ट्री इट मीन सर हमारा कहने को एग्रीकल्चर को भी एज ए इंडस्ट्री हम कॉमर्शियलाइज यूज कर सकते हैं सर। जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है सर, वो हम ला सकते हैं सर। इंडस्ट्री हमारा कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है सर। उसके अलावा भी हम अपने जैसे हमारे यहाँ फर्टाइल लैंड है, हमारे यहाँ बहुत तरह की मतलब चीजें क्रॉप वैरायटी है सर, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ा करके जिस तरह के कॉमर्शियल क्रॉप्स है सर उनका मतलब उत्पादन करके उनके बेस्ड हम हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना करके सर हम अपने यहाँ प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं सर। विकास जी फीडबैक दे करके इसको एंड कर दीजिए, आप फीडबैक दीजिए। ओके, ओम प्रकाश जी आपको इंटरव्यू कैसा लगा? क्या कमी दिखी आपको अपने? सर कहीं मैं लैग कर रहा था सर। कहाँ? कुछ चीजें फैक्चुअल चीजें जैसे सर ने कुछ चीजें जैसे सोशलिज्म के बारे में सर पूछा, मार्केट सोशलिज्म, उसके बारे में अवेयर नहीं था सर। और सिचुएशनल क्वेश्चंस थे, उसमें लगता है सर मैं परफेक्ट नहीं रहा सर। एक दो चीजें हैं जो वैसे आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा, ठीक है, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट देयर आर थिंग्स जो आपको ध्यान रखना होगा। लाइक एज अ वीकनेस जो आपने वर्ड यूज किया, ट्रस्ट वेरी इजीली, या फिर इमोशनल, जो इन जनरल हम सब लोग कहते हैं कि हम बहुत इमोशनल हैं। तो ये कहना कि हम इमोशनल, इंडियंस आर बाय नेचर वेरी इमोशनल, तो ये काइंड ऑफ एक्सेप्टेड फैक्ट्स हो गया है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रस्ट वेरी इजीली या बीइंग इमोशनल डज नॉट वर्क। और हम लोग बार बार वीकनेस को समझते हैं कि हमारे अपने का, उसका तरीका अलग हो सकता है वीकनेस को दिखाने का, जो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो, ठीक है। लाइक हमारी वीकनेस ये भी हो सकती है कि मैं कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज करना चाहता हूँ, से
कोई म्यूजिक सीखना चाहता हूँ, गिटार और समथिंग, और मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, चाहे मेरे जॉब के बिजी होने की वजह से या पढ़ाई में रहने की, तो रेदर देन सेइंग कि आप ऐसा चीज जो आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज से को निगेटिव की तरफ ले जाए, आप इस तरह के वीकनेस को यूज वहाँ पे कहें अगर पूछा जाए तो। ठीक है? यस सर। सेकेंड थिंग, जब मैंने आपसे इंटेंशनली बोला अच्छा जहानाबाद वो नक्सल एरिया, ठीक है, तो वो बोलने का तरीका, इंटरव्यू कई बार स्ट्रेस देकर किसी चीज को बोलते हैं, तो आप डायरेक्टली लाइक आपने लेटर ऑन सही किया उसको कि सर चीजें इंप्रूव हो गई, बट यू एक्सेप्टेड यस सर, लाइक आप एग्री कर रहे हो दैट टुडे स्टिल इट इज अ नक्सल एरिया। आप कह सकते थे सर अर्लियर इट वाज अ नक्सल एरिया बट थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, उसके बाद आपने जो भी रीजन दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एंड ऑल, इस तरीके से जाना था। ओके, थर्ड थिंग, कुछ शब्द हैं जो हम लोग कॉर्पोरेट्स में अलग तरीके से यूज करते हैं और मीटिंग्स में, और कुछ बीपीएससी या सिविल सर्विसेज के बोर्ड में अलग तरीके से। जैसे सर को आपने रिपीट के लिए, जब सर का क्वेश्चन आप नहीं सुन पाए तो आपने रिपीट के लिए रिक्वेस्ट किया एंड यू सेड कम अगेन सर। नाउ दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज वी यूज इन कॉर्पोरेट मीटिंग्स या कलीग्स के बीच में चल जाएगा, बट टू अ मेंबर हु इज 30 or 25 years elder than you, you cannot say come again sir। आप कह सकते हैं कैन यू प्लीज रिपीट सर। तो हमारे जनरल टॉकिंग में ये शब्द आ जाते हैं, और आपने मर्चेंट नेवी में वर्क किया है तो मे बी वहां से ये बोरोड है आपके लिए, तो इस इंटरव्यू के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और कहीं कहीं मैंने देखा है कि आपने बहुत ज्यादा भूमिका बनाना शुरू किया, लाइक यू आर आंसरिंग मेंस, जैसे सर ने आपसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा एसडीएम का, और आप पूरा एसडीएम की भूमिका वगैरह बताना शुरू किए हैं, और तब आप आए कि आप अपने वो कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस पे। तो अगर आपके पास आंसर नहीं है तो इट्स ओके, बट इतना ज्यादा घुमाने, क्योंकि वो हो सकता है आपको सुनने का, आपके जो मेन पॉइंट्स है आप डायरेक्टली कम टू दैट, क्योंकि हो सकता है आपके जो सबसे अच्छे पॉइंट है जो आप भूमिका के बाद बोलने वाले चाहते हैं वो बोलने का आपको मौका ही ना मिले और दूसरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अदरवाइज यू हैव डन वेरी वेल, इंफॉर्मेशन इज वेरी गुड, प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, योर फेस, यू हैव अ स्माइलिंग फेस, ऑल द बेस्ट सर। ठीक, अवकाश ठीक है? ओके, यस आज ठीक रहा, पिछला से काफी इम्प्रूवमेंट दिखा, काफी ठीक रहा, और आए दिन सर ने जो बताया कुछ इम्प्लीमेंट करना है, काफी ठीक रहा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विकास आप लीव करेंगे क्या? हाँ सर, हाँ अच्छा सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छा लगा कि हम फीडबैक देते हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट फीडबैक आप देते हैं। ठीक है, हम भी देते ही हैं, बहुत माइन्यूट फीडबैक देते हैं। मुझे लगता है आज के बाद अगर जितने में रहेंगे आपको उसी समय फीडबैक आपसे दिलवा दिया जाएगा। ओके सर, ओके सर, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। मैं उस चीज के लिए बहुत कायल हो गया हूँ, मतलब जो सुने तो से ज्यादा मैं आपके बारे में जो मैंने सुना था बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत उससे भी अच्छा लगा, मतलब इतना थैंक यू सर। ठीक है, और सर मेरी इच्छा होगी कि कभी मतलब इस गरीब के घर में भी आए आप। ठीक है सर, सर 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 जरूर सर, जरूर। ठीक है सर, सर कुछ 8-9 वीडियोस हैं इंटरव्यू को लेके इस बार के, मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अगर किसी बच्चों को आपको अगर लगता है। और वेरी रिसेंटली हमारी साक्षात्कार की नई पुस्तक भी आई है सर। अच्छा, पहले इंग्लिश मीडियम की थी, इस बार हिंदी की है। उसका भी मैं आपको एक वो भेज दूंगा सर। ठीक है सर? अच्छा, हाँ, ओके, हाँ सर। हमारी भेंट जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आज। ठीक है सर, हमें